Hello guys, so this is my last video in the ECG series, and the topics covered in this video would be, I'll be discussing about the heart block and the various types of heart block, the primary and the secondary, and also primary, secondary, tertiary. We'll be talking about in detail the Wenchbach phenomena, cardiac arrhythmias, both atrial and the ventricular arrhythmias, and the Wolff-Parkinson's White syndrome at the end. So now let's get started with the video. So first, let us come on to the heart block. So I'll be making a chart which would simplify the understanding. Okay, so starting on with the definition of the heart block. So what do you understand by heart block? Heart block का मतलब क्या है? So any disturbance in the normal transmission of the heart rate या impulses in the SA node. So we know SA node is the normal pacemaker of the heart, and SA node में जो भी impulse generate हुई है उसका अगर transmission normal है तो ठीक है. But अगर कोई भी disturbance है इसकी normal transmission में from SA node to the parts of the heart, then that would be defined as the heart block. So how do I define heart block? It is any disturbance. It is any disturbance in the normal transmission of the impulse from SA node. Okay, so this would be the definition of the heart block. अब heart block दो type का होता है. सबसे पहले the SA nodal block and the AV nodal block. SA nodal block कब कहेंगे? If the disturbance or the blockage lies at the level of the SA node. So होगा क्या? Initially whole heart rate is lost, whole heart beat is lost, but थोड़े टाइम के बाद by an approximately interval of 2 cardiac cycle there would be the restoration of the heartbeat, but that definitely would be a slow heartbeat. क्योंकि हमें पता है SA node की जो heart rate होती है वो 60 to 100 beats a minute होती है, 60 to 80, और it can go up to 100 beats a minute. ठीक है, तो simply क्या है? Here the block lies at the level of the SA node, and initially, so ठीक हो गए काफी. So initially whole heart rate is lost, whole heart beat is lost, but then after approximately 2 cardiac cycles, ठीक है, interval of 2 cardiac cycles, restoration of heart rate is there, restoration is there of heartbeat, but that would definitely be slow. ठीक है, मतलब कम हार्ट बीट होगी. देन मेन हमें पढ़ना है एवी नोडल ब्लॉक, और एवी नोडल ब्लॉक टाइप्स का होता है. सो इट कैन बी अ पार्शियल हार्ट ब्लॉक. सो एवी नोडल ब्लॉक दो टाइप्स का होगा. इट कैन बी अ पार्शियल हार्ट ब्लॉक, इट कैन बी अ पार्शियल और इनकम्प्लीट, और इट कैन बी अ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है. So AV nodal block can be again partial या complete. Partial again is of 2 types. So partial is again of 2 types. It can be 1 degree heart block, or it can be 2 degree heart block. Okay, and complete heart block is also called as 3rd degree heart block. ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है ये समझ आ गया. अब 1 डिग्री और 2 डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या फर्क है? सो 1 डिग्री में जो एट्रियल इज टू वेंट्रिकुलर रेट है दैट इज 1:1. ठीक है, सो गिव मी अ सेकंड. सो इट इज द एट्रियल इज टू वेंट्रिकुलर रेट जो है दैट इज 1:1 इन 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक, बट इन 2 डिग्री हार्ट ब्लॉक अच्छा फिर ये नॉर्मल है एट्रियल इज टू वेंट्रिकुलर रेट, लेकिन दिक्कत क्या आई? PR इंटरवल इज लॉन्ग, PR इंटरवल इज प्रोलॉन्ग्ड. इसका मतलब क्या है? कंडक्शन टाइम फ्रॉम द SA नोड टू द AV नोड, उसमें तो दिक्कत है, वो इसलिए बढ़ गया. PR इंटरवल इज इंक्रीज्ड. इन द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक द एट्रियल इज टू वेंट्रिकुलर रेशियो, so this ratio, the atrial is to ventricular ratio, that is either is 2:1 or it can be 3:1. So this is the ratio in the second degree heart block. ठीक है, अब इसी जो हार्ट ब्लॉक है इधर ही एक फिनोमेना ऑब्जर्व होता है which is called the Wenchbach phenomena. Here only a phenomena is observed that is called as the Wenchbach
phenomena. So how do you define as Wenck-Bach phenomena? So Wenck-Bach phenomena मैं बोलती हूँ, लिख मैं अगली स्लाइड में दूंगी क्योंकि यहाँ जगह नहीं है. I don't want to spoil this chart. सो सिंपली क्या होता है, हमने देखा कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है ना, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है. क्यों? क्योंकि डिले हो रही है कंडक्शन, बट इट इज ग्रेजुअल लेंथिंग. धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे पीआर इंटरवल लंबा होता जा रहा है और उसके बाद अचानक से एक वेंट्रिकुलर बीट दिखी नहीं. सो हाउ डू यू डिफाइन वेंच-बैक फिनोमेना? इट इज ग्रेजुअल लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल and then until one ventricular beat is skipped and then again the cycle is repeated. फिर से धीरे धीरे बढ़ेगा. तो मैं अगले पेज पे से डिफाइन करूंगी, बट आई होप सो आपको क्लियर हो गया. दिस कम्स अंडर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. सो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हुआ, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स है, हमें पता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है, एवी नोड होता है और नोडल कंडक्शन होता है. ये सिस्टम ही लॉस्ट हो गया. तो एट्रिया अपनी बीट से मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करे और वेंट्रिकल अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करे. एट्रिया तो आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ऐसे नोड भी है, एवी नोड भी है, लेकिन वेंट्रिकल्स के पास कौन सा है, सिर्फ पुरकिंजी फाइबर्स. एंड यू नो पुरकिंजी फाइबर्स का रेट कितना होता है, 15 से 40 बीट्स अ मिनट. सो सिर्फ उसी रेट से वेंट्रिकल्स बीट करेगा, विच इज नॉट सफिशिएंट टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द हार्ट. ठीक है, तो एक बार देखते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझ आएगा अगर लिखेंगे तो. सो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, देयर इज कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ कंडक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. सो कंप्लीट obstruction between atria and ventricles, जिससे क्या होता है, ventricles that beats at the rate of ventricles beat with their own rate and that beating is at the rate of 15 to 40 beats a minute. ठीक है, पर मिनट. क्यों? क्योंकि दिस इज द बीट फॉर पुरकिंजी फाइबर्स. ठीक है, इसकी वजह से दिस इज कॉल्ड एज इडियोवेंट्रिकुलर रिदम. दिस बीटिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑन देयर ओन is called as idioventricular rhythm. Idioventricular rhythm. So please take screenshot of this क्योंकि इसके बाद मैं इसके आगे और समझाऊंगी. There is an important disease which is Stokes-Adams syndrome. ठीक है, अगर ये एकदम से हुआ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक तो क्या होगा? So that is the Stokes-Adams syndrome. So I'm clearing the slide. Please take screenshot. ठीक है, तो हमें दो चीजें डिस्कस करनी है. एक हमने अभी की इडियोवेंट्रिकुलर रिदम, वेंट्रिकुलर रिदम, और इसी के बाद हमने डिस्कस करना है स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम, और आई सेड दैट मैं एक और चीज बताऊंगी अभी आपको, वेंच, जो मैंने अभी बताई थी, लिखूंगी वेंक-बैक फिनोमेना. ठीक है, तो अब एक एक करके फिर से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लेट अस कम टू अभी हमने जस्ट डिस्कस किया. हमने कहा था थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच का जो कनेक्शन है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स बीच की जो कनेक्शन है, ये लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं. वेंट्रिकल्स आर बीटिंग एट द रेट ऑफ 15 to 40 beats a minute. This is because of the Purkinje fibers. ठीक है, and this type of beat is called as idioventricular rhythm. अब क्या हुआ, if this third degree heart block this becomes suddenly, ठीक है, so क्या होगा, if third degree heart block develops suddenly, तो क्या होगा, एकदम से बीपी कम होगा. ठीक है, देयर वुड बी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एकदम से, जिसकी वजह से जो ब्रेन की सप्लाई है, वो एकदम से कम होगी. और एकदम से ब्रेन की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, देयर वुड बी डिजीनेस, देयर वुड बी फेंटनेस, डिजीनेस, देयर वुड बी फेंटनेस और लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस. एंड द लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, this syndrome is called as Stokes-Adams syndrome. This syndrome is called as Stokes-Adams syndrome. ठीक है, अब आ जाते हैं वेंच-बैक फिनोमेना. वेंच-बैक फिनोमेना कहाँ देखा हमने, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर देखा. हमने क्या कहा था, दिस इज ग्रेजुअल लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल. दिस इज ग्रेजुअल लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल until one ventricular beat is skipped, until one ventricular
beat is skipped and then the cycle continues and cycle continues. ठीक है, तो ये क्या है, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये पता नहीं क्यों बट these are the most favorite questions in the Viva. These are the most favorite questions. वो ये देंगे तीन प्लस एक और है which is the Wolff Parkinson's White syndrome. ये तीन देंगे and they will say that describe them. ठीक है, so I hope this is clear. अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे in which we have to see about the cardiac arrhythmias. So let me draw the chart for cardiac arrhythmias. Okay, so our next topic of discussion is cardiac arrhythmias. Cardiac arrhythmia समझने से पहले it is very much important if you understand what do you understand by the word extrasystole. Extrasystole क्या है? So अगर कोई भी irritable focus है substance of the heart के अंदर और वो beats produce कर रहा है, ठीक है, but ये beats normal beats नहीं है, these are abnormal beats, ठीक है. So under abnormal conditions, spontaneously these beats may arise due to irritable focus within the substance of the heart. Such beats arising, these are called as extrasystoles. और नॉर्मली जो 2 to 4 एक्स्ट्रा सिस्टोल्स है, एक्स्ट्रा सिस्टोल्स अ मिनट, दिस इज नॉर्मल, ठीक है. तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स्ट्रा सिस्टोल. अब किसी भी अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर सब्सटेंस ऑफ द हार्ट के अंदर अगर स्पॉन्टेनियसली बीट्स अराइज करे, abnormal beats and these are not normal beats, then these are called as extrasystoles. And 2 to 4 extrasystoles a minute, these are normal, ठीक है. लेकिन क्या हुआ, ऐसे नोड की हमें पता है, वी नोट की ऐसे नोड की जो बीट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 बीट्स, कैन बी अप टू 100, ये पर मिनट इतनी बीट है. अगर ये एक्स्ट्रा सिस्टोल जो इरिटेबल फोकस की वजह से हो रही है, ये इस बीट से ज्यादा हो जाए, देन व्हाट इज इट? इट इज कार्डियक एरिथमिया. सो आई होप कार्डियक एरिथमियास क्या होगा, दिस इज क्लियर, ठीक है. सो हाउ डू यू डिफाइन कार्डियक एरिथमियास? So if any irritable focus that is discharging repetitively at a rate more rapid than the SA node, then it can maintain the heart rate. हमने पता है कि SA node क्या करता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बीट्स a minute करता है, इसलिए बाकी जो भी सेंटर्स हैं, जो AV node, पुरकिंजी फाइबर्स, इनका ऊपर ओवरड्राइव सप्रेशन करता है, इनकी बीट्स को कम कर देता है. क्यों? क्योंकि इसकी खुद की ज्यादा है. बट अब कार्डियक एरिथमियाज में इससे ऐसे नोड से भी ज्यादा बीट्स प्रोड्यूस करने वाली कोई जगह है, तो वो जगह क्या करेगी, ऐसे नोड को सप्रेस कर देगी और खुद ओवरटेक कर लेगी हार्ट रेट को. लेकिन ये तो अबनॉर्मल है, इरेग्युलर है, इसलिए दिस इज प्रॉब्लमैटिक. कार्डियक एरिथमियास. नाउ कार्डियक एरिथमियास कैन बी ऑफ टू टाइप्स. आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द चार्ट. सो कार्डियक एरिथमियास कैन बी एट्रियल एरिथमियास और इट कैन बी वेंट्रिकुलर एरिथमियास. एज द नेम सजेस्ट, अगर एट्रियम में हो तो एट्रियल एरिथमियास और अगर वेंट्रिकल में हो तो वेंट्रिकुलर एरिथमियास. इज दिस मच क्लियर? अब they can further be of three types. So atrial tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation. Likewise ventricles के साथ भी. तो कैसे याद में रखेंगे? अगर up to 200 beats a minute, beats per minute है, then it would be atrial tachycardia. Atrium है तो tachycardia. Flutter, there would be 200 से 350 beats per minute, और beyond 350, beyond there would be atrial fibrillation. अब जल्दी इरेगुलरली हार्ट बीट करे जा रहे, तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा ना. ये इनकम्प्लीटली हार्ट पंप कर रहा है बट ब्लड जा नहीं पा रहा, ठीक है. सो दिस इज देयरफॉर प्रॉब्लमैटिक, ठीक है. और आप एक चीज और नोटिस करोगे, एट्रियल फ्लटर की जो रेट है 2:1, 3:1, दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. रेशियो ये आएगी, ठीक है. और फिब्रिलेटिंग वेव में क्या है, पी वेव नहीं होगी इस केस में. और वेंट्रिकल्स में भी सेम, टेकिकार्डिया अप टू 200 बीट्स पर मिनट, अप टू. फ्लटर 200 से 350 और फिब्रिलेशन 350 एंड बियॉन्ड, ठीक है. एक और चीज है, वेंट्रिकुलर फ्लटर में हेयर पिन कर्व्स ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है. और फिब्रिलेटिंग वेंट्रिकल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने एमसीक्यू में नोटिस किया है, a fibrillating ventricle cannot pump heart effectively. This is the statement is a fibrillating ventricle cannot pump blood effectively, therefore it will lead to sudden death, and इसीलिए it is the most dangerous type of arrhythmia. So question आता है, which is the most dangerous type of arrhythmia? And answer is ventricular fibrillation is the most dangerous type of arrhythmias. So और cardiac arrhythmias के cause क्या हो सकते हैं?
कुछ भी हो सकता है, कोई इरेगुलर हार्ट कहीं पर पंप होना शुरू हो गया अचानक से, बीट्स आनी स्पॉन्टेनियसली अराइज होनी शुरू हो गई, या कोई इजी पैसेज बन गया इस चक्कर में, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट टॉपिक फॉर द डिस्कशन, व्हिच इज वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम, व्हिच इज द वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। सो नॉर्मली क्या होता है, दिस इज एसए नोड, दिस इज एवी नोड, एसए नोड टू एवी नोड 3 बंडल्स होते हैं, वेंचबैक, थोरेल एंड बैकमैन, वेंचबैक, बैकमैन एंड थोरेल, एंड फिर एवी नोड से बंडल ऑफ फिश जाता है विच डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड देन यहाँ से आते हैं पुरकिंजी फाइबर्स अराइज होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच फर्दर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसिकल में, जो भी है ऐसे होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स बीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम में एक और पाथ डेवलप हो जाता है लो रेजिस्टेंस का, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ केंट, दिस इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ केंट। तो नॉर्मली हार्ट रेट को ऐसे ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है, और फिर साइमल्टेनियसली हार्ट जो वेंट्रिकल्स है वो कंट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वुल्फ पार्किंसंस में क्या होता है, एक लेस रेजिस्टेंस पाथ डेवलप हो जाता है, जिससे जो राइट साइड पे हार्ट है एकदम से कोई भी जहां पर भी होगा वहां से, हमें पता है कि चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ ऑफर फॉलो करते हैं, तो यहाँ से इमीडिएटली पहुंच जाएगा वेंट्रिकल्स में, तो एक वेंट्रिकल जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक वेंट्रिकल लेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। सो एक्चुअली में मैं अगर थ्योरेटिकली बोलूं तो कैसे बोलेंगे, देयर इज एन एडिशनल नोडल कंडक्टिंग टिश्यू which develops between the atria and ventricle, and this is called as bundle of Kent. So there is an additional nodal conducting tissue which develops, conducting tissue between atria and ventricle develops, and this is called as the bundle of Kent, and this results in more rapid conduction. As a result, one ventricle is excited early, one ventricle is excited early, और ये गलत बात है, क्यों, हम चाहते हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लड का फ्लो मेंटेन होता रहे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस इज द एंड ऑफ माय ईसीजी सीरीज। So I hope कि आपको अच्छा लगे, because I have worked really hard for these videos, and please do subscribe to my channel and like this video and share amongst your friends also, and thanks guys, और मैं hope करती हूँ कि आप सारी videos देखें, इससे आपको भी benefit होगा और जो मैंने मेहनत की है वो भी use होगी। So thanks, that's all for this video.